एक अनोखी खुशबू ब्लैकस्टोन अगरबत्ती। सैटेलाइट को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से कामयाबी के साथ लॉन्च किया गया। PSLV-C 57 का सफल उत्थापन और इसके साथ प्रथम भारतीय सौर अंतरिक्ष यान निकल चुका है। सूर्य के तेज से विज्ञान को प्रकाश। As well as Government of India for providing a great opportunity for the solar and heliophysics community of the country. Both solar, heliophysics as well as astronomy thrives on data. More the data you have, we get more understanding about the system. And Sun is our own. Star, our dearmost star. So understanding them is much more important for our everyday life. So this mission, Aditya, when it was conceived initially, with a support from our Professor U.R. Rao, along with Dr. Srikumar and Professor G. Srinivasan, we made sure that we will have a unique data set which is not available from any other missions internationally. So the 7 payloads, what was conceived for this particular mission, will provide a unique set of data which is currently not available from any other missions, which will provide us new insight into the solar and heliophysics community in India, and provides some important aspects like the initiation of the coronal mass ejections, the speed at which it gets initiated, and some wavebands which are very important for the Earth ionospheric connections, like near ultraviolet band, and the high energy particles, which is high energy radiations as well as particles which is coming from the solar flares and coronal mass ejections. So these are the informations which would be available from this particular mission. First of all, let me tell you that Aditya L1 is a multi-wavelength, multi-instrument and multi-directional mission. Multi-wavelength because it works in X-rays, UV and visible. Multi-instrument because there are 7 experiments on board. And multi-directional because it looks not only in the sun direction but also around it. Now when the sun becomes angry, there are 2 types of process which happens. One is solar flares, that means electromagnetic radiation, which reaches the earth in 8 minutes. But along with that, there is a mass which is also ejected out in form of plasma, and that can take about 2 to 4 days to reach the earth. What we are looking for from the Aditya L1 mission is to see the impact of solar flares as well as coronal mass ejections as they comes to the earth. We have delivered one of the major payloads on this mission. This is the visible emission line coronagraph. So if you actually look at the words used in it, it is visible because it is seeing the sun on the visible wavelength. Emission line, so what is it detecting? It is the emission line of certain elements. Because the corona is hot, the emission which you get is in the terms of, it's not absorbing the light which is coming from the sun, but it's already hot, so it is coming down by emitting lines. So we are tracking these lines using what? A coronagraph. Now what is a coronagraph? This instrument makes a total solar eclipse all the time within the instrument. So you are looking at the sun all the time, 24/7 through using this mission. और आदित्य L1 की लॉन्चिंग हो गई है। मुल्क भर में खुशी का माहौल है। आदित्य L1 की लॉन्चिंग पर सीआरपीएफ जवानों ने खुशी जताई है। भाग लेकर अपनी जानकारी परखें और आकर्षक नगद राशि जीतें। www.mygov.in/चंद्र। भारत माता की जय। 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 आप देख सकते हैं कि माता की जय। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद एक और सफलता आज भारत ने आदित्य L1 लॉन्च करके एक सोलर मिशन शुरू किया है। ये पहला सोलर मिशन है भारत का। जैसा कि देश के 140 करोड़ अवाम इस दिन के इंतजार में थे और उन्हें ये उम्मीद है कि ये मिशन कामयाब होना चाहिए। उसके साथ साथ जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस हैं जो कि देश की आंतरिक सुरक्षा का काम अंजाम देते हैं, वो लगातार इस मिशन की कामयाबी के लिए दुआ करते हैं
और आज हमने देखा कि ये जो जवान है यहाँ पर हाथों में तिरंगा लहराए, ये बिल्कुल साक्षी बने उस महत्वपूर्ण पल का जब ये सैटेलाइट लॉन्च किया गया है। उन्हें पूरी उम्मीद है, आशा है कि ये जो मिशन है भारत का, जैसे चंद्रयान 3 का मिशन कामयाब हुआ था, ये मिशन भी आगे कामयाब होगा। हम कुछ लोगों से यहाँ बात करेंगे, जवानों से बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का उत्साह है। आपने जो देखा, जो लॉन्चिंग हुई, तो जो ये लॉन्चिंग आपने देखी, किस तरह का आपका जो उत्साह है, क्या लगता है कितनी बड़ी कामयाबी है भारत की? सर, आज भारत के लिए बहुत खुशी का माहौल है। नासा ने आदित्य L1 का लॉन्च किया है। ये भारत में बहुत खुशी का माहौल पैदा करेगा। ऊपर सूर्य पर जाने के बाद में जैसे चांद 3 को लॉन्च किया था, वैसे ये चांद पे जो नए नए उपकरण मिले हैं, नए नए संसाधन वैज्ञानिकों को जो शोध मिले हैं, वैसे ही सूर्य पर जाने के बाद मिलेगा। इनका ये पूरा विश्वास है कि जैसे चंद्रयान 3 से लगातार वहाँ से इमेजेस मिल रही हैं और भारत का जो लक्ष्य है कि जो जितना भी जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स में किस तरह की प्रक्रियाएँ हो रही हैं, किस तरह के वहाँ पर उसका असर धरती पे क्या पड़ रहा है, उन्हें पूरी आशा है कि यहाँ की ये जो मिशन लॉन्च किया गया है, इसके भी कुछ अच्छे ही नतीजे सामने आएंगे। जो वैज्ञानिक हैं उन्हें वो ऐसी तस्वीरें वहाँ से लेके आएंगे जिससे जो ऐसी इंफॉर्मेशन मिलेगी जिससे भारत आगे बढ़ सकता है विज्ञान के क्षेत्र में। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे, आज आप साक्षी बने हैं, कितना बड़ा दिन है और क्या कुछ कहेंगे आप? हम ये कहना चाहेंगे, जिस तरह से हमारे भारत के वैज्ञानिक इसरो के जितने भी वैज्ञानिक हैं, ये सब विश्व में अपना नाम ऊंचा कर रहे हैं। चंद्रयान की सफलता के बाद हमारा ये भारत देश लक्ष्य पर है कि हम सूर्य ही नहीं, सभी ग्रहों पर पहुंच करके वहाँ के भौगोलिक स्थिति के बारे में, वहाँ के कण कण के बारे में जानकारी लेकर के विश्व को हम इस ज्ञान को जो है बताएंगे कि वहाँ के हर कण कण में क्या छिपा है, हर राज्य में क्या छिपा है, ताकि उसके वहाँ पर क्या हमारी जो है उस हवा में क्या है, उस आयनोस्फीयर में क्या है, और वहाँ की सौर की कितनी पावर है, उस सौर से हम जो है उस सौर ऊर्जा से हम यहाँ पर हर क्षेत्र में कितना उपयोग कर सकते हैं, इसके बारे में बहुत आशाएं जगी हुई हैं और सबके निगाहें, पूरे विश्व की निगाहें भारत पर टिकी हुई हैं। जैसे भारत ने सफलता चंद्रयान पर किया और अपना डंका बजा दे विश्वमंडल पर, इसी तरह से आज सूर्य पर अपना जो है झंडा गाड़ करके पहुंच करके वो पूरे विश्व को बताएगा कि देखिए हम वहां पहुंच करके अब सूर्य से कितनी हमको ऊर्जा मिल रही है, ऊर्जा किस क्षेत्र हम लगा रहे हैं, तो सब विश्व की निगाहें इस पर टिकी हुई है। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ जितने भी जो CRPF के पर्सनल हैं, चाहे वो ऑफिसर्स हैं, चाहे वो जवान हैं, लगातार वो यही कह रहे हैं कि भारत ने जिस तरह से उन्नति की है इस क्षेत्र में, आगे भी ये मिशन उसका जारी रहेगा। कुछ और भी ऑफिसर्स यहाँ हैं CRPF के। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह का ये मिशन है, कितना बड़ा मिशन है और कितनी बड़ी सफलता है भारत के लिए? ये चंद्रयान 3 के बाद भारत के लिए आदित्य L1 बहुत ही बड़ा मिशन है। ये बहुत बड़ी सफलता है, भारत देश के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए यह सफलता का विषय है और भारत के लिए गौरव का विषय है। आने वाले समय में हमें पूरे सौरमंडल से लेके हमारा जो चंद्रयान से लेके हमारा आदित्य L1 पूरा सूर्य के बारे में जानकारी देगा। इससे हमें पूरे विश्व के बारे में जानकारी मिलेगी कि किस क्षेत्र में कितनी गर्मी होगी, किस क्षेत्र में बरसात होने की संभावना होगी। मेडिकल साइंस में इससे हमें फ़ायदा मिलेगा और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिसके बारे में कि बड़े बड़े जो डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, इसमें खोजबीन कर पाएंगे, अपनी रिसर्च पूरी कर पाएंगे और इससे देश हमारा तरक्की करेगा। देश ही नहीं, पूरा विश्व में हिंदुस्तान से जो है आपकी वैज्ञानिक नीतियाँ, आपके जो है पूरा जिस तरह से इंजीनियर्स, डॉक्टर्स जो रिसर्च करते हैं, वो हिंदुस्तान में से मदद लेंगे। तो ये जो मिशन है, मैं आपको बता दें कि ये मिशन जो है, ये जो आज लॉन्च किया गया है आदित्य L1 को 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय करनी है और इसमें 125 से 127 दिन लग सकते हैं। लेकिन यहाँ जो लोग हमारे साथ हैं, जैसा कि आपने सुना, ये सब ये कामना करते हैं कि ये मिशन कामयाब हो जाए और जहाँ देश के 140 करोड़ आवाम ये प्रार्थना कर रहे हैं जैसे चंद्रयान 3 कामयाब हुआ था, वैसे ही आदित्य L1 भी कामयाब हो जाए। सुरक्षा बल के ये जवान भी लगातार खुशी मना रहे हैं और इसी कामना के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि ये मिशन भी कामयाब होगा। वीडियो जर्नलिस्ट साहिबा भट्ट के साथ मनोज कौल, न्यूज़ 18 जम्मू।
और उधमपुर में सीआरपीएफ के 187 बटालियन के अफसरों और जवानों ने आदित्य L1 सैटेलाइट की कामयाब लॉन्चिंग का जश्न मनाया। कमांडेंट 187 बटालियन MD साजिद ने कहा कि ये एक तारीखी दिन है और हमने इस दिन को शानदार तरीके से मनाया। इन्होंने मजीद कहा कि इस तारीखी दिन पर जवानों में मिठाइयां तकसीम की गईं। भारत की इस कामयाबी और तरक्की से हम सबको फख्र महसूस हो रहा है। हमने इसी तरह सेलिब्रेट किया कि ये एक बहुत बड़ा हमारे भारत के इतिहास में एक आज का दिन सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा कि जब हम सूरज को हम फतह करने निकले हुए, सूरज से जो किरणें निकलती हैं उनको स्टडी करने के लिए आदित्य L1 सक्सेसफुली लॉन्च हुआ है और ये लैग्रांज पॉइंट 1 नंबर तक जाएगा और ये 4 महीनों के सफ़र में वहाँ जाके स्थापित होने के बाद बहुत से डाटा हमारे पास भेजेगा जिसकी स्टडी करके हमारा देश बहुत ही आगे बढ़ेगा। और हम एज देश के सैनिक होने के नाते, CRPF के कार्मिक होने के नाते पूरा बल, हमारा पूरी वाहिनी बहुत खुश है, बहुत उत्साहित है और उम्मीद करते हैं इसी तरह इसरो और आगे बढ़ के और काम करे और देश का नाम रोशन करे। और खलाई मिशन इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के खालिक विक्रम साराभाई ने अपनी रिसर्च सयाहती मकाम गुलमर्ग में सतह समंदर से 13,000 फीट की बुलंदी पर वाक़ अफरवट की चोटी पर मुकम्मल की थी और इसके बाद गुलमर्ग पे ही एक साइंसी लेबोरेटरी का संग बुनियाद रखा गया। ये दुनिया की वाहिद ऐसी लेबोरेटरी है जो इस कदर बुलंदी पर वाक़ है, जहां आज पूरा मुल्क चंद्रयान मिशन के कामयाब तजुर्बे की खुशी मना रहा है और इस चंद्रयान में रोबोट गाड़ी का नाम भी विक्रम रखा गया। गुलमर्ग में सैर व तफरीह की गरज से आए हुए सयाहों ने यह जानकर खुशी का इजहार किया। अफरवट नाबिक चोटी पर अमेरिका से आए हुए सयाहों के साथ खास बातचीत की हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा ने। न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर हुसैन हुर्रा। जैसा कि आपने देखा है कि चंद दिन पहले जो चंद्रयान 3 मिशन कामयाब तजुर्बा रहा है और उन्होंने चांद पे लैंडिंग की है, तो काफ़ी सारे लोग जो हैं यानी पूरा देश जो है वो खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। और इसी सिलसिले में हमारे साथ कुछ लोग हैं, ये इंडियन हैं मगर ये अमेरिका में रह रहे हैं, खुद साइंस के साथ वाबस्ता रहे हैं और इनकी खुशी है आज। और क्योंकि चंद्रयान की अगर हम बात करें, क्योंकि इसरो के जो फाउंडर है जो विक्रम साराभाई है, उन्होंने इसी अफरवट पीक पे उन्होंने अपनी रिसर्च की है। और आप बताएं, क्योंकि आज जो विक्रम साराभाई उन्होंने रिसर्च यहाँ पे की है, कितनी खुशी हुई। तो उन्होंने रिसर्च यहाँ पे की है इसी गुलमर्ग के अफरवट पीक पे, क्या कहें? हम बहुत प्राउड फील करते हैं कि इंडिया ने ये चंद्रयान का सक्सेसफुल मिशन किया। लेकिन जब मैं यहाँ आया तो मेरे को मालूम नहीं था कि विक्रम साराभाई ने यहाँ कॉस्मिक रे पे रिसर्च की हुई थी और उनकी लेबोरेटरी यहाँ है। तो मैं ये बोलूँगा कि सबको यहाँ आना चाहिए। ये जगह ऐसी है जहाँ हम खड़े रह के प्राउड हो सकते हैं एज ए इंडियन, बिकॉज यहाँ कॉस्मिक रे की शुरुआत हुई थी और विक्रम साराभाई इज़ द फाउंडर। तो हाँ, यहाँ आना चाहिए और सब प्राउड करेंगे। आई एम वेरी प्राउड दैट आई एम स्टैंडिंग एट द स्पॉट वेयर ही केम एंड डिड हिज रिसर्च ऑन द माउंटेन। साइंस से अमेरिका में किस फील्ड में आप काम कर रहे थे? मैंने न्यूक्लियर फिजिक्स किया था, फिर मैं मेडिकल फिजिक्स किया। तो मैं रेडिएशन ऑन्कोलॉजी और इमेजिंग में काम करता था। मैंने 54 इयर्स काम किया और पिछले साल ही मैंने रिटायरमेंट लिया है। बहुत नसीब वाला हूँ कि मेरे को यहाँ आना मिला और मेरे को मालूम पड़ा कि विक्रम साराभाई ने यहाँ रिसर्च की थी। तो इट्स अ प्राउड मोमेंट कि यू आर स्टैंडिंग ऑन अ ग्राउंड जीरो। कितनी खुशी हुई आज आपको? देखिए, ये तो बहुत ही खुशी की बात है हमारे देश के लिए। और दूसरी बात ये है कि अवेयरनेस होनी चाहिए, जैसे आपने बताया, हमें मालूम नहीं था। तो यहाँ के गाइड वगैरह को ये चीज़ जाननी चाहिए और उन्हें सारे लोगों को बताना चाहिए। ये मुझे लैकिंग लगा कि ये बात हमें क्यों नहीं मालूम थी, आपने मिलते तो हमें मालूम नहीं था। तो ये बात मेरे दिल में ये आता है कि इन लोगों को पता होना चाहिए और इन लोगों ने सबको बताना चाहिए। जी, आप अपनी व्यूज बताएं, क्या कहेंगे आप उस हवाले से जो विक्रम साराभाई ने यहाँ पे रिसर्च की है? आई एम सो हैप्पी। आई एम गुजराती एंड ही इज अ गुजराती एंड आई एम ग्लैड ही डिड इट। सो आई एम प्राउड बीइंग अ गुजराती पर्सन एंड ही डिड एंड आई एम प्राउड ऑफ बीइंग अ गुजराती एंड ओह माय गॉड। मैं न्यूज़ 18 को बता देता हूँ, इतने अच्छे आदमी है, इन्होंने हमें ये विक्रम साराभाई का रिसर्च का बताया। अगर हमको ये नहीं बताते तो हमको मालूम ही नहीं पड़ता। सो आई एम वेरी प्राउड टू एसोसिएट विथ यू। यू आर अ जेंटलमैन एंड अ स्कॉलर।
I am so happy that I met you, and I am so proud where I'm standing right now. कश्मीर जिंदाबाद। थैंक यू सर। तो नाज़रीन, आपने सुना है कि किस तरह उन्होंने कहा कि उन्हें खुशी है, आज उन्हें इंतहाई मसरत हुई है कि ये जानकर, और हमें आगे बढ़ना चाहे और इस तरह आगे रिसर्च करनी चाहिए। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं अफरवट गुलमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा। और जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर साबा के सरोवर से टोल प्लाजा हटाए जाने की मांग को लेकर साबा मुख्य चौक में भूख हड़ताल पर बैठे लोगों ने अपनी भूख हड़ताल को स्थगित कर दिया है। भूख हड़ताल पर बैठे सदस्यों की आज जम्मू में डिविजनल कमिश्नर जम्मू से बैठक हुई थी, जिसके बाद साबा में पहुंचकर उन्होंने अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी। सदस्यों ने बताया कि जम्मू कश्मीर के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ हुई बैठक में उन्हें 7 दिन का समय दिया गया है कि टोल प्लाजा को लेकर मामला हल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर 7 दिन में यह मामला हल नहीं हुआ तो फिर वो प्रदर्शन का रास्ता अपनाएंगे। डीसी साहबा अभिषेक शर्मा और एसएसपी साहबा बेनाम तोश भी इस मौके पर मौजूद थे। ट्रांसपोर्ट जो हमारी JNK ट्रांसपोर्ट की यूनियन है, उनका चक्का जाम था, तो 2 बजे के करीब उनकी जो हड़ताल है वो समाप्त हो गई। तो डिबकॉम साहब से उनकी कोई फैसला हुआ या डिसीज़न हुआ, जिसके दौरान उन्होंने अपनी हड़ताल जो है वो पेंडिंग कर ली या उठा ली। कहने को यही आता है कि 5 दिन का टाइम उनको दिया है, और 5 दिन के बाद उनका क्या रिएक्शन होता है। उसके बाद डिबकॉम साहब का मैसेज हमें आया, हमें 7 दिन की मोहलत ली उन्होंने हमसे कि 7 दिन के बाद जो है, जो भी इसका डिसीजन है टोल प्लाजा का, वो आपके हित में होगा। तो उसी दौरान हमारी जितने सांबा के हमारे साथी जहां अनशन पे बैठे थे, सांबा के लोग जिन्होंने इस एजिटेशन को सपोर्ट किया था, सब में बैठ के एक निर्णय लिया कि 7 दिन जो वेट करना है, क्या फैसला होता है। तो उसके दौरान यही फैसला हुआ हमारा कि 7 दिन जो अपनी एजिटेशन है इसको हम डिले करते हैं, और अगर हमारे हित में फैसला हुआ या लोगों के हित में फैसला हुआ तो ये स्ट्राइक जो है दोबारा शुरू भी हो सकती है। आपने देखा कि पिछले कल हमने प्रयास किया, कुछ और संगठनों ने प्रयास किया, हमने अपने सांबा के मंच पे उनको लाया, और हमें ये कहने में गर्व भी हो रहा है कि सांबा का जो मंच है वो उसने एक सूत्रधार की भूमिका निभाई है। हमने इन 3-4 संगठनों को जोड़ा है, और जब इनका नेशनल हाईवे अथॉरिटी और डिवकॉम के साथ मीटिंग के बाद इन्होंने हमें इनविटेशन भेजा है, हमारे पास आए हैं अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी हमारे पास आए हैं, तो हमने आपस में चिंतन करने के बाद इसमें सिर्फ जो लोग अनशन पे बैठे थे, इनके अलावा भी जो हमारी कोर कमेटी थी जिनका बहुत बैकअप था, काफ़ी लोग थे इसमें, कम से कम 50-1 लोगों की हमारी कमेटी बनी हुई थी जो हमें सपोर्ट भी कर रहे थे, दिन रात हमारे साथ चल रहे थे। उनके बीच में बैठक हुई और चिंतन हुआ कि हमको डिवकॉम साहब रमेश कुमार जी के साथ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। लास्ट में यही फैसला हुआ, हमको मिलना चाहिए, हमको बात रखनी चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए। हम उनके पास गए, हमारे साथ SSP साहब, सांबा SSP, सांबा DC, ये हमारे साथ है, डिवकॉम हमारे साथ है। तो जैसे प्रधान साहब ने बताया कि हमारे काफ़ी इश्यूज थे, ये संघर्ष खत्म नहीं हुआ है, संघर्ष आगे भी चलेंगे। आप कुछ भी ऐसा ना करें जिसमें डोगराओं की यूनिटी, एकता में कमी आए। मैं इसी के साथ एक ही नारा लगाऊंगा, डोगरा एकता जिंदाबाद।
और जम्मू कश्मीर के बाद अब लद्दाख में भी स्मार्ट मीटर्स को लेकर एहतजाज का सिलसिला शुरू हो गया है। खलस्ती के बाशिंदों ने अपने गांव में स्मार्ट मीटर लगाने पर सख्त एतराज जताया है। नंबरदार और सरपंच की क़यादत में गांव वालों ने एहतजाज किया और स्मार्ट मीटर्स लगाने की इजाजत नहीं दी। लोगों ने कहा कि इन्हें स्मार्ट मीटर के बारे में इल्म नहीं है और महकमा PDD ने इन्हें स्मार्ट मीटर्स की तनसीब के बारे में आगाह भी नहीं किया और मीटर को पुराने मीटर से तब्दील करना शुरू कर दिया। न्यूज 18 से बात करते हुए PDD AEE स्टैंसिन टोलदार ने कहा कि दीगर कई गांव में स्मार्ट मीटर तब्दील कर दिए गए हैं और इन्हें कहीं से कोई शिकायत नहीं मिली है। उन्होंने मजीद कहा कि इससे गैर कानूनी कनेक्शन चेक करने में मदद मिलेगी और सारिफ अपने मोबाइल पर इस्तेमाल की निगरानी भी कर सकता है। जुले तेने दक्षांगा खालसे कनेक्शन चिकतान तेने खालसे ना तेने तिरिंग स्मार्ट मीटर इंस्टॉलेशन का खो ऑब्जेक्शन चस्तोक तेने ऑब्जेक्शन बची चस्तन ते कना ता खालसे गोबा सब्जेक्शन स्टैंडिंग ले ngata ये स्मार्ट मीटर का ऑब्जेक्शन चस्तोक ची गुनसान जीवन जुले मुरुप ले समय संगाला ता ngejarang न्यूज 18 लांगे थुजी छे ngejarang का शॉर्ट टाइम ngejarang स्योते कवरेज चोचस पलाले ngaje खालसे दिरिंग तेने स्मार्ट मीटर लगाए सोंगले चीफ एजेंडा देने ngata डिपार्टमेंट छोक ना चा ngacha अवेयरनेस कैंप जिंग मातांग ले डिपार्टमेंट छोक ngati गांव इन नंगो का तेने सरपंच पांच तेने ngati रिप्रेजेंटेटिव मंगबोत क्याले तेने खो जैसे ngacha थुक से तेने ngacha स्मार्ट मीटर लगाए चेन तेजुक सी खो चांग मालोले अचानक योंग से खो अजमाना अचानक एक्सपोज ट्रांसफर पे ngacha विरोध चुस्मिने स्मार्ट मीटर खिलाफ ले संगमा संगाला ता न्यूज 18 pa sankan jiksmo palan ga sangma langai khalse pa same chona thukje che ju chanyale dering ngejang akana tus ping se lena sku ches pasking takpana thukje che yale achole dakse smart meter iskola ton sanga do ju chara sangma sangala tangati ladakh spol da tuk mana baki jiksten nambo chhar dukane yulji ge no khalale ga ka ngata ngati ama un sonmana juli fating chose nai ngati kharcha on phingka ne nokle daksa do jok salak jik smart meter jok si development chaka ni do jok salak jik gagar gangme na matang ganjik gagar mumbai delhi mumbai wala matang ganjik ngati duru gomara tangos pochi rak jis panga samas ngala tale yagar pare duk miun la thezom sangsong ira chin chimin gane chi osimet yang ngati konsala gyus mi yang ngati ira ngati khapur patik chiang thugyus minuk jes pasana te yang thezom chichik de songale thezom mi spang ira ngati nga daksa khone ju chokla ngata yonggo mang yuni nok ngata ina subsidy thobe sang snan ma ina daksa khone yuang malak mani tungju ji chokshi ka balap chi tana telang ina smart meter tak se mirik gompa community halta mana borang le khone da balap khapchu tuk chenok te kana ina le ngajai kala ngaji ka power grid chola ngaji rama juluk sosat pin dezana khone yu molspin ija subsidy ang thoben ngija ina le ika laznang ngija class 40 lasna kangba ngija khalse pa yang ngekhor yul sama thoben tuzuk chang chang meda langina le dringaja sangmai ga tenna mane gobnon gomane phala yong jale tenna piangaja sangmai goma teo juspin daksa goba sai mola chola laba gomdo asal le asal karusa साल ते तीन महीने तक जो भी जिस तरह से खालसी निवासियों के बीच में जो स्मार्ट मीटर को लेके कुछ ऑब्जेक्शन था उसी को जो सुलाने के लिए यहाँ पर हमारे साथ PDD के AEE तोल्दन साहब है। तोल्दन साहब गाँव वाले के साथ मीटिंग किया तो गाँव वाले का ये मेन शिकायत है कि उनको अवेयरनेस नहीं दिया गया स्मार्ट मीटर के बारे में। आपका क्या कहना? हाँ जी, स्मार्ट मीटर बेसिकली हमने लद्दाख में पूरा यूटी लद्दाख को स्मार्ट मीटर इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से डायरेक्शन आया है। वो स्पेशल डेवलपमेंट पैकेज में ये इम्प्लीमेंट कर रहा है पूरे लद्दाख को, जबकि इसमें से हमें कारगिल में 1500 मीटर अभी लग चुके हैं और लेह डिस्ट्रिक्ट में भी 1600-1700 मीटर अभी तक लग चुके हैं। तो इनमें से सबसे पहले हमने आलची विलेज को सबसे पहले हमने चुना है। जो स्मार्ट मीटर से जो आपने जिक्र किया उसका बिल जनरेट करके आपने कंपैरिजन किया जो पुराने डिजिटल मीटर? हाँ, पुराने मीटर के साथ हमने अभी कंपैरिजन किया है। बिल्कुल आप सही बोल रहा है, तो वो मीटर बिल्कुल सही चल रहा है, इसमें कोई मीटर में कोई कंप्लेंट नहीं है। तो इसका मैं फायदा भी बताता हूँ। इसमें फायदा ये है कि उसको अपने डे टू डे जो घर में अभी लोड चल रहा है उसको अपने मोबाइल के जरिए अपने स्मार्टफोन के जरिए उसको मॉनिटर कर सकते हैं कि मेरे घर में 10 किलोवाट चल रहा है, 5 किलोवाट चल रहा है या 2 किलोवाट चल रहा है। सपोज फॉर एग्जांपल मैं कहीं बाहर हूँ दिन में, तो अभी मेरे घर में कोई लोड चला होगा, कोई स्विच ऑन होगा, मेरा कोई लाइट स्विच ऑन होगा, फ्रिज स्विच ऑन होगा जो अननेसेसरी है, दिन में नहीं चलना चाहिए, जो टीवी स्विच ऑन होगा वो मुझे दिन में पता चल जाएगा कि मेरे घर में ये स्विच ऑन है। इसलिए इमीडिएटली हम घर में फोन करके हम बता सकते हैं कि ये अननेसेसरी यहाँ पे चल रहा है दिन में, जो जबकि जरूरत नहीं है उसको हम बंद करके हम अपने घर वालों को बता सकते हैं। तो ये एक तो ये फायदा हुआ। सेकेंडली डिपार्टमेंट के लिए ये फायदा है कि
हमें अभी मीटर रीडिंग जो पुराना मीटर भी डिजिटल मीटर है, ये भी डिजिटल मीटर है, लेकिन फर्क है कि ये स्मार्ट है। स्मार्ट इन द सेंस कि ये कम्युनिकेट करते हैं, ये SMS या मैसेज भेजते हैं हमें। सर आखिर में संक्षेप में जो कनेक्टिविटी यहाँ लद्दाख में इश्यू रहता है, ये स्मार्ट मीटर फिर इस पे कैसे इस पे ऊपर इफेक्ट है? इसमें कम्युनिकेशन का 2 वे है। इसमें एक RF बेस है, एक GSM है। GSM वाला मोबाइल नेटवर्क पे है, वो हमें खासकर ले में 15,000 कंज्यूमर को टारगेट किया है, जो हमें GSM स्मार्ट मीटर लगाएंगे। बाकी रूरल एरिया में बहुत सारे ऐसा जगह है जहाँ पे नेटवर्क है ही नहीं, लेकिन वहां पे भी स्मार्ट मीटर हमने लगाना है, लेकिन वहां के लिए हमें रेडियो फ्रीक्वेंसी बेस का एक स्मार्ट मीटर है, वो रूरल एरिया में लगना है। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। CPS नियुक्ति को चुनौती देने के मामले में 18 सितंबर को होगी अगली सुनवाई। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने जारी किया आदेश, अब सभी CPS समन सर्विस माने जाएंगे। छात्रवृत्ति घोटाले में ED की बड़ी कार्रवाई। ED ने हिमाचल से 4 लोगों को किया गिरफ्तार। आरोपियों को 5 दिन के ED रिमांड पर भेजा गया। ED ने 31 मार्च 2022 को 4 करोड़ 42 लाख रुपए किए थे अटैच। CBI पहले से कर रही है मामले की जांच। और हिमाचल प्रदेश के मंडी से बड़ी खबर, चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे बहाल कर दिया गया है। 42 घंटे के बाद यातायात के लिए ये मार्ग बहाल कर लिया गया है। झलोगी टनल के पास मलबा हटाया गया और अब ये मार्ग बहाल कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल और पंजाब के मुख्य सचिव अनुराग वर्मा के साथ द्विपक्षीय मामलों पर विस्तार से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को आपदा के समय हिमाचल की सहायता करने के लिए आभार जताया। भांग की खेती को वैध करने के लिए बैठक, कल दोपहर 3 बजे राज्य सचिवालय में होगी बैठक। जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में होगी बैठक। देश के विभिन्न राज्यों का दौरा कर चुकी है समिति, विदेशों की नीति का भी अध्ययन करेगी समिति। कृषि और पशुपालन मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार ने नूरपुर के ढसोली गांव में 76 लाख रुपए की लागत से तैयार नलकूप का उद्घाटन किया। इस दौरान प्रोफेसर चंद्र कुमार ने कहा कि हर घर को नल से जल और खेत तक पानी पहुंचाना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। कुल्लू विधानसभा क्षेत्र में शोभला साथी ट्रस्ट ने आपदा प्रभावित 200 गरीब परिवारों को राहत सामग्री बांटी। इस ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी CPS सुंदर सिंह ठाकुर ने उन्होंने कहा कि कुल विधानसभा क्षेत्र से विधायक बनने के बाद उन्होंने क्षेत्र के गरीब लोगों की मदद करने के लिए पारिवारिक शोभला साथी ट्रस्ट बनाया था, जिसमें विधानसभा से मिलने वाले वेतन को इस ट्रस्ट के माध्यम से जनता की सेवा के लिए खर्च किया जाता है। समस्तीपुर के पटोरी में कुल्हाड़ी से काटकर महिला की हत्या कर दी गई है। 3 छोटे छोटे बच्चों के सामने महिला की हत्या की गई। बहुत सारे लोगों ने इस घटना का विरोध किया और सड़क जाम कर हंगामा भी किया। नवादा में एक युवक की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। दरअसल वासलीगंज में सूर्य मंदिर के पास वीरू डोम नाम के युवक को उत्पाद विभाग की टीम ने नशे की हालत में गिरफ्तार किया था। रांची पुलिस ने और रांची के ट्रिपल मर्डर केस की गुत्थी चंद घंटों में ही सुलझा दी है। इस मामले के 11 में से 9 आरोपी पकड़े जा चुके हैं, जबकि 3 फरार आरोपियों की सरगर्मी से तलाश चल रही है। रोहतास के विक्रमगंज में बाइक सवार 2 अपराधी ने प्रखंड प्रमुख पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिससे प्रखंड प्रमुख के दाहिने हाथ में गोली लग गई। घायल को लोगों ने अस्पताल पहुंचाया। वहीं घटना के बाद अपराधी फरार हो गए। पटना सिटी की मेहदीगंज थाना पुलिस ने लुटेरा गिरोह का खुलासा किया है और उसके एक सक्रिय सदस्य को गिरफ्तार किया है। वहीं छापेमारी की भनक लगते ही 2 लुटेरे फायरिंग करते हुए फरार हो गए। गिरफ्तार आरोपी के पास से हथियार भी बरामद किया गया है। गया के फतेहपुर थाने में घर के बाहर सोए एक व्यक्ति पर तलवार से हमला कर दिया गया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। Presented by
अनोखी खुशबू ब्लैकस्टोन अगरबत्ती। इसरो ने फिर रचा इतिहास। श्रीहरिकोटा से आदित्य L1 की सफल लॉन्चिंग। मिशन आदित्य L1 का तीसरा चरण भी सफल। आदित्य L1 की उड़ान भरने के दौरान भीड़ ने भारत माता की जय के लगाए नारे। लोगों ने वैज्ञानिकों को दी बधाई। ड्यूटी में पूजा का वीडियो वायरल। संस्कृत महाविद्यालय ज्वालाजी के प्रिंसिपल का वीडियो वायरल। डीसी ने दिए जांच के आदेश। लोगों ने जताई थी आपत्ति। शिमला में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। विपक्ष ने आपदा में सरकार का किया सहयोग, लेकिन राज्य सरकार केंद्र पर फोड़ रही है ठीकरा। जयराम ठाकुर का बयान। नालागढ़ राम शहर के मजीहड़ में भूस्खलन से 13 परिवारों के मकान तबाह। सभी 13 परिवार बेघर। अंबेडकर भवन में अपने बच्चों के साथ दिन बिताने को मजबूर। 11 अगस्त को हुआ था भूस्खलन। अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव नए अंदाज में मनाया जाएगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम में कलाकारों के लिए लगाया जाएगा अलग से स्टेज। आशुतोष गर्ग ने विभागीय अधिकारियों के साथ ढालपुर मैदान का किया निरीक्षण। सुखू सरकार फिर लेगी कर्ज। 15 साल के लिए 500 करोड़ रुपए कर्ज लेगी सरकार। वित्त विभाग ने जारी की अधिसूचना। एक अनोखी खुशबू ब्लैकस्टोन अगरबत्ती। स्वागत है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं अपना हिमाचल। भारत का पहला सूर्य मिशन आदित्य L1 श्रीहरिकोटा स्थित अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित कर दिया गया है। इसरो के सूर्य मिशन आदित्य L1 के प्रक्षेपण को देखने के लिए सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। आदित्य L1 को सूर्य के करीब पहुंचने में लगभग 4 महीने का समय लगेगा। आदित्य L1 लगभग धरती से 15 लाख किलोमीटर दूरी तय करेगा। तो भारत का पहला सूर्य मिशन आदित्य L1 आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च हुआ। आदित्य L1 लॉन्च होने पर नेहरू तारामंडल में लोगों ने वंदे मातरम के नारे लगाए। लोगों ने वैज्ञानिकों को बधाई देते हुए कहा कि भारत अब स्पेस में भी नया इतिहास रचने वाला है। बहुत खुशी वाला यह पल है। भारत के वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई। आदित्य L1 लॉन्च कर दिया गया है और उसकी खुशी आप देखिए लगातार तारामंडल में है। सर क्या कहेंगे इसरो के साइंटिस्ट को सबसे पहले बधाई है, क्योंकि उन्होंने जो करके दिखाया है वो कोई नहीं कर सकता और आने वाले टाइम में भी वो ऐसा कुछ करके दिखाते रहेंगे जो कि कोई नहीं कर सकेगा। सर वैज्ञानिकों ने पहला जो फिलहाल इंडियन मिशन है उसको लॉन्च किया है। ये डेडिकेटेड मिशन है। कितना वैज्ञानिकों के लिए ये चुनौतीपूर्ण रहा और आपके लिए कितनी खुशी की बात है? मेरे ये समझ लीजिए कि टॉप ऑफ द वर्ल्ड, देयर इज नो सेंटेंस एट ऑल। इससे ऊपर कुछ नहीं। जो इंडिया ने करके दिखाया है वो पूरे वर्ल्ड के लिए मिसाल है। आज जो है इंडिया आगे बढ़ता जा रहा है, पूरे वर्ल्ड के अंदर अपनी एक छाप छोड़े जा रहा है। तो ये समझ लीजिए कि हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। आप लोग सुबह से ही यहाँ पहुँच गए थे? पहुँच गया था। आप तिरंगा लेकर आ रहे हैं, कितनी खुशी की बात? बहुत खुशी की बात है सर। इससे पहले चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है, वो बिल्कुल सक्सेसफुल रहा है। देखिए ये अपने आप में एक बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि आदित्य L1 का प्रक्षेपण फिलहाल वैज्ञानिकों की तरफ से कर दिया गया है और उसकी जो खुशी है, उसकी जो उत्साह है, वो फिलहाल नेहरू तारामंडल में देखने को मिल रहा है। तमाम जो लोग यहाँ फिलहाल पहुंचे हैं उन्होंने भारत माता की जय का उद्घोष भी किया, तालियां बजाई, लोग काफी खुश थे और ये अपने आप में एक सफल प्रक्षेपण वैज्ञानिकों का माना जा रहा है। तमाम जो लोग हैं वो फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर खुश हैं। इनका साफ तौर से कहना है कि कहीं ना कहीं कितने खुश हैं फिलहाल एक सफल? सर बहुत खुश है, बहुत ज्यादा खुशी का कोई वो नहीं है, बहुत ज्यादा खुश है। ये भी सक्सेसफुल होगा मून की तरह और इसके लिए कांग्रेचुलेशन करना चाह रहा हूँ शुरू को। बस कितने खुश हो? साइंस के स्टूडेंट हो? हाँ हम बहुत खुश है, क्योंकि हमारा सन का पहला मिशन है। हमारी यही इच्छा है कि ये चंद्रयान की तरह भी ये भी सक्सेसफुल हो मिशन। हाँ भाई बहुत खुश है। ये यस वैज्ञानिकों को क्या कहोगे? कांग्रेचुलेशन हमारी तरफ, अपनी तरफ से बहुत ज्यादा कांग्रेचुलेशन कहूँगा सर इसरो वाले साइंटिस्टों को। मेन तो पूरा भरोसा है
कि ये मिशन पूरा सक्सेसफुल होगा। कांग्रेचुलेशन टू इसरो। कहाँ से आए हो? अभी हम ये रोहिणी साइड से आए हैं। पता था कि यहाँ उत्साह होगा, लोग होंगे। हाँ, इसलिए हम आए थे क्योंकि दर्शन का मिशन लॉन्च होने वाला है, इसलिए ही आए थे हम। तो देखिए, तमाम जो लोग हैं वो बहुत खुश हैं क्योंकि सफल प्रक्षेपण फिलहाल यहाँ से हो गया है और इसीलिए भारत माता का जो झंडा है, भारत का जो झंडा है, उसको दिखाया जा रहा है। लोगों में जोश है, लोगों ने वैज्ञानिकों का उत्साहवर्धन किया है। साफ तौर से इसरो को धन्यवाद बोला है क्योंकि चंद्रयान 3 के सफल प्रक्षेपण के बाद बैक टू बैक ये दूसरा ऐसा अपने आप में चुनौतीपूर्ण मिशन रहा जिसको वैज्ञानिकों की तरफ से आज उसका उद्बोधन किया गया है, उसका प्रक्षेपण किया गया है। फिलहाल अब 140 दिन के बाद रिजल्ट्स आना शुरू होगा, सूर्य की स्टडी की जाएगी और वजह यह है कि ये सब इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि वैज्ञानिकों का कहीं ना कहीं जो एक बड़ा ऑपरेशन है वो अब कहीं ना कहीं स्पेस में भी देखने को मिलेगा। कैमरामैन सोनू के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। शिमला में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सांसद सुरेश कश्यप, विधायक बलवीर वर्मा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जयराम ठाकुर बोले, हिमाचल में करीब 2 महीने से त्रासदी का दौर चल रहा है। विपक्ष ने इस आपदा में सरकार को पूरा सहयोग दिया। ये त्रासदी बहुत बड़ी है, जान माल का नुकसान, अप्रत्याशित संकट के क्षण में केंद्र सरकार ने भी अप्रत्याशित मदद की है। नुकसान की भरपाई का साझा जिम्मा केंद्र और राज्य सरकार का है। बड़ी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार पर है। मित्रों, हिमाचल प्रदेश में लगभग 2 महीने से त्रासदी का एक दौर जो चल रहा है, उसमें विपक्ष की ओर से सरकार को और समाज को जो सहयोग देने की बात थी, उसमें हमने पूरी जिम्मेवारी के साथ काम करने की कोशिश की है। मैं ये मानता हूं कि ये त्रासदी बहुत बड़ी त्रासदी रही और हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार से जान और माल को जो क्षति हुई है वो अप्रत्याशित है, इसमें दो राय नहीं है। मैं केंद्र सरकार का एक बार फिर से आभार व्यक्त करना चाहूंगा। इस संकट के क्षण में लोगों की जिंदगी बचाने के लिए, राहत लोगों तक पहुंचाने के लिए जो मदद मिली है वो भी अप्रत्याशित है। हाँ, हम इस बात से सहमत है कि नुकसान बहुत ज्यादा है। और स्वाभाविक रूप से जब नुकसान ज्यादा है तो इसकी भरपाई करने का साझा जिम्मा जो है केंद्र और प्रदेश सरकार का जो बनता है, केंद्र अपना दायित्व का निर्वहन पूरी जिम्मेवारी के साथ कर रहा है और उसके बाद बड़ी जिम्मेवारी अगर किसी के ऊपर है तो वो प्रदेश सरकार के ऊपर है। आज मैं इस बात को मैं देख रहा था, यहां आने से पहले अचानक मुझे एक पत्र प्राप्त हुआ जो सोशल मीडिया में वायरल हुआ पड़ा है। वो उनके ही बड़े सीनियर एमएलए हैं, विधायक हैं। मैं उनका जिक्र करने की आवश्यकता महसूस नहीं, उसमें कंटेंट है। राजेंद्र राणा जी का पत्र है जो सोशल मीडिया में आज छपा है, उन्होंने डाला है। उनने मुख्यमंत्री से आग्रह किए हैं, अगर हमारे कहने पर आपको लग रहा है कि विपक्ष को नहीं बोलना चाहिए, आपदा में नहीं बोलना चाहिए, हमने कहा नहीं बोलना चाहिए। हमने सब्र किया और 2 महीना तक हम नहीं बोले हैं, लेकिन आखिरकार आपदा के नाम पर हमको कब तक बंद करेंगे? आपके ही विधायक जो हम कांग्रेस पार्टी के शायद वर्किंग प्रेसिडेंट भी हैं, वर्किंग प्रेसिडेंट है एट प्रेजेंट, कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट भी है। उन्होंने कहा कि हमने कुछ वादे किए हैं सत्ता में आने से पहले, उन वादों का क्या हुआ?
और पंडों के साथ लगते टावाराफी मिडिल स्कूल के अध्यापकों और स्टाफ ने अपने स्कूल पर आई आपदा से निपटने के लिए किसी सरकारी मदद का इंतजार न करते हुए अपनी जेब से पैसे खर्च करके स्कूल परिसर की सफाई करवा डाली। हालांकि इस काम में पंडो स्कूल से आए NSS स्काउट एंड गाइड के वॉलंटियरों, स्थानीय ग्राम पंचायत, SMC और स्थानीय लोगों का भी भरपूर सहयोग मिला। स्कूल के कार्यवाहक मुख्याध्यापक घनश्याम ने बताया कि 14 अगस्त को स्कूल के साथ वाले नाले में भयंकर बाढ़ आ गई। इस वजह से मिडिल स्कूल तवाराफी का एक कमरा पूरी तरह से ढह गया, जिसमें स्मार्ट क्लास का सारा सामान रखा हुआ था। स्कूल का खेल मैदान पूरी तरह से बह गया और जो 2 मंजिला भवन के 6 कमरे थे उसके धरातल में भारी मलबा घुस आया था। स्कूली बच्चों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए सभी ने मिलकर श्रमदान का फैसला किया। कैंपस को साफ करने के लिए राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के प्रधानाचार्य आदरणीय श्री सुशील अरोड़ा जी तथा उनके साथ कुछ सहयोगी अध्यापक व अन्य जो NSS वो स्काउट एंड गाइड के स्वयंसेवियों ने इसमें बहुत सहायता की, हमारी बहुत हेल्प की और हमारे कैंपस को उन्होंने साफ सुथरा किया ताकि हम जो आज इस योग्य हो कि हम इसमें पाठशाला में कक्षाएं चला रहे हैं। साथ में पंचायत प्रधान श्रीमती गीता देवी, साथ में उनके जो और बनाली सहित आसपास के क्षेत्रों में इन दिनों सेब का सीजन अपने पूरे चरम पर है। सब्जी मंडियों में इन दिनों भारी संख्या में सेब की फसल की खेप पहुंच रही है और किसान बागवानों को उनकी फसलों के उचित दाम भी मिल रहे हैं। मंडियों में सेब 10 रुपए से लेकर 100 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा है, लेकिन रास्तों के बंद होने की वजह से किसान बागवानों की चिंता बढ़ रही है। एक और जहां कई स्थानों पर मार्ग बंद होने से ग्रामीण लोग अपनी सेब की फसल को वक्त पर मंडी नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ व्यापारियों को भी रास्तों के बंद होने की वजह से सेब की गाड़ियों को दूसरे राज्यों में भेजने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। व्यापारियों का कहना है कि किसान बागवानों को उनके सेब के फसल के अच्छे दाम मिल रहे हैं। सर सेब के बारे में बोल रहे हैं, सेब के दाम तो ठीक है, मंडी में ऊंचे हैं, पर व्यापारियों को प्रॉब्लम हो रही है अभी भी रोड की वजह से। 4 दिन हमारी गाड़ियां नहीं पहुंची हैं, जिसके व्यापारी को भारी नुकसान उठाना पड़ा। पर अब 1-2 दिन से ना थोड़ा ठीक हो रहा है क्योंकि गाड़ियां टाइम से पहुंच रही हैं। बाकी मंडी के दाम तो ठीक है, किसानों के लिए तो बढ़िया है। व्यापारी के लिए थोड़ी दिक्कत आई बीच में, वो थोड़ी किसानों के लिए भी आई थी, और ये मौसम पे डिपेंड है। बाकी देखो आगे क्या ऊपर वाले की मर्जी है। बाकी मंडी के रेट तो ठीक है, आगे व्यापारियों गाड़ियों को थोड़ी दिक्कत अभी भी आ रही है। जो आप बात पूछ रहे रोड की, रोड तो थ्रू हो चुका है, पर लेकिन अभी भी थोड़ा बीच में प्रॉब्लम आ रही है, गाड़ियां आने जाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। और बाकी तो मार्केट तो देखे जाए बहुत ही बड़ी किसानों के लिए ऐसा कुछ नहीं है। जिस ढंग से मतलब रोड ब्लॉकेज हुआ था तो रेट जो किसानों को अच्छे दाम मिल रहे हैं, कोई ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब किसानों को कोई हानि हुई है। हानि कोई नहीं, थोड़ा सा प्रॉब्लम है। रोड बंद होने के बाद व्यापारी को भी प्रॉब्लम है, आड़ती को भी प्रॉब्लम है, किसानों को भी प्रॉब्लम है। और किसानों की फसल तो ठीक बिक रही, बढ़िया बिक रही है। मार्केट में 10 रुपये से 70, 80, 90 रुपये किलो तक सेब बिक रहा है और बढ़िया दाम मिल रहे हैं। और व्यापारी को भी अच्छा हो रहा, कह रहा हूँ, ऊपर नीचे आने जाने के लिए अब थोड़ा रास्ता भी थ्रू हो चुका है। थोड़ा सा जाम की प्रॉब्लम है, बारिश ना हो तो 10-15 दिन अगर मौसम ठीक रहता तो शायद मैं समझता हूँ कि आदान प्रदान गाड़ियों का बढ़िया होगा। और उपमंडल नारागढ़ के तहत रामशहर के मझेहड़ गांव के लोगों पर पहले प्राकृतिक आपदा के कारण भूस्खलन हुआ और उसके बाद गांव के 13 परिवारों के मकान टूट गए और सभी 13 परिवार बेघर होकर सड़कों पर आ गए। प्राकृतिक आपदा 11 अगस्त को हुई थी और उसी दिन से यह सभी 13 परिवार के सदस्य सड़कों पर आ चुके हैं और कोई अपने रिश्तेदारों के यहां दिन गुजार रहा है तो कोई अम्बेडकर भवन में अपने बच्चों के साथ दिन बिताने को मजबूर है। मेरा जो गांव है वो 11 तारीख रात को जो हमारे 13 फैमिलीज 13 घर थे वो 100% डैमेज हो गए हैं। और 11 के बाद हम कोई रोडों पे, कोई अम्बेडकर भवन, कोई किसी के पास, कोई किराए पे, मतलब पूछ गिन नहीं हो रही हमारी 11 तारीख के बाद। और आज 1 तारीख हो गई है, यानी कि महीना ही सोच लो, अब 11 को महीना हो जाएगा पूरा। और जब हमने तंबुओं की बात करी कि हम तंबू लगा लेते हैं किसी शामलाट पे, हमने जगह भी सिलेक्ट करी भी हम वहाँ जाएंगे, हम जगह भी सेफ देख के आए, तो तहसीलदार साहब कहते हैं कि आप ऐसा करो, आप एप्लीकेशन दो, आप रेजोल्यूशन लेके आओ प्रधान से। प्रधान जी रेजोल्यूशन के लिए मुकर गए हैं, वो कह रहे हैं हम रेजोल्यूशन नहीं दे सकते। जबकि मैं एक वार्ड मेंबर हूँ, मेरा भी एक अधिकार बनता है भी हम रेजोल्यूशन वहाँ से ले, हमें कोई मना नहीं कर सकता। ठीक है, ये बात अलग है, अभी उन्होंने नहीं दिया है, फिर भी बात कर रहे हैं। एप्लीकेशन आज दे के आए हैं, प्रार्थना पत्र दे के आए हैं सारे इकट्ठे गाँव वाले। और अब देखना है, अब तहसील में जाएंगे। तहसील में हमने एक एप्लीकेशन दी थी भी हमें तंबू लगाने के लिए जगह दी जाए, बाकायदा जगह का नाम भी दिया था, एप्लीकेशन भी दी थी। तो 2 दिन पटवारी छुट्टी पे थे यहाँ रामशहर में, आज आए हैं। आज वो कह रहे हैं यहाँ पे तस्मे काट दिए गए हैं,
28 बीघा भूमि है और 28 बीघा भूमि में 5 बीघे के स्थिति में कटे हुए हैं, बाकी 23 बीघा बची हो, 23 बीघा में भी हमें बैठने के लिए दे सकते हैं, जबकि हम परमानेंटली नहीं बोल रहे हैं, हम सिर्फ अस्थायी रूप में बोल रहे हैं भी हमें लोगों के घरों में रहना मुश्किल हो रहा है। 4 दिन पहले तहसीलदार साहब ने हमारे से एप्लीकेशन लिखवाई कि जी आपको अगर शामलात चाहिए तो एप्लीकेशन दे दो। हमने एप्लीकेशन दे दी, फिर इन्होंने बोला गांव की वो चाहिए, NOC चाहिए, पूरे गांव के साइन करवा के लाए NOC के लिए। अब गांव वालों को कोई इतराज़ नहीं है, तो फिर आज फिर गया मैं वो कानगो साहब के। और वन विभाग की ओर से इंदौरा के पंचायत खंडरा के बौकी का तालाब में 74वां वन महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस खास मौके पर इंदौरा के विधायक मालेंद्र राजन ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान विधायक राजन ने सबसे पहले क्षेत्र की पूजा अर्चना की और उसके बाद सुख चैन प्रजाति का पौधा रोपित किया। वहीं उन्होंने वन महोत्सव की पट्टिका का भी अनावरण किया। इस दौरान विधायक मालेंद्र राजन ने वन महोत्सव के खास मौके पर पहुंचे लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार पेड़ पौधों के संरक्षण और संवर्धन के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए मुख्यमंत्री वन कल्याण योजना भी शुरू की गई है। सबको पता है कि हर साल ये बरसात के मौसम में ये जो पौधारोपण का कार्यक्रम है ये हर जगह पे चलता है। तो मेरा ये फॉरेस्ट के अधिकारियों से भी यही आग्रह रहेगा, फॉरेस्ट की जितनी भी हमारे वन विभाग के यहाँ पे अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, कि ऐसा ना हो कि ये एक औपचारिकता मात्र ना हो ये पौधारोपण का कार्यक्रम। इसको जो हम सही रूप से जो है इसको अमली जामा पहनाएं। ये पौधे जो लगाए हैं ये आने वाले समय में बचने भी चाहिए, चलने चाहिए। और भी जहाँ जहाँ EFO साहब बता रहे थे कि ये पूरे के पूरा हमारा यहाँ पे जो जितना भी हमारा जो एरिया इनके अंडर पड़ता है उसमें पूरा का पूरा इस टाइम जो है पौधारोपण का कार्यक्रम चला हुआ है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये पौधे हैं आने वाले समय में ये सेफ रहने चाहिए, चलने चाहिए, ताकि जो इसका जो पौधारोपण करने का ये हमारा जो सही मकसद है वो हमारा जो पूरा हो। इसके सहयोग के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, प्रेस के भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव को लेकर जिला प्रशासन ने 2 माह पहले तैयारियां शुरू कर दी हैं। उपायुक्त एवं कमेटी के उपाध्यक्ष आशुतोष गर्ग ने विभागीय अधिकारियों के साथ ढालपुर मैदान का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विभागीय अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए। उपायुक्त एवं दशहरा उत्सव के उपाध्यक्ष आशुतोष गर्ग ने कहा कि इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव नए अंदाज में मनाया जाएगा, जिसे लेकर CPS महोदय की अध्यक्षता में बैठक में फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि स्टॉल के लिए प्लॉट आवंटन अक्टूबर माह के पहले सप्ताह में होगा। अभी कुछ दिन पहले जो है हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल दशहरा कमेटी की बैठक जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी के अध्यक्ष हैं माननीय CPS साहब, उनकी अध्यक्षता में हुई थी और उस बैठक में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे। इस बारी के दशहरा को लेकर कुछ चेंजेस जो हैं वो ओवरऑल दशहरा के स्वरूप को लेकर इस बार हमारे इंटरनेशनल ट्रूप्स का पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा है दशहरा में। एक जो हमारा प्रदर्शनी ग्राउंड है वहाँ पे प्लान किया गया है कि एक सेपरेट स्टेज वहाँ रहेगा और थोड़ा सा ओपन स्पेस वहाँ पे रहेगा लोगों को बैठने के लिए, ताकि वो एग्जीबिशन फूड कोर्ट उस एरिया को एंजॉय कर सकें, वहाँ पे उस स्टेज को एंजॉय कर सकें। और उसके अलावा थोड़ा सा जो हमारा पूरे ग्राउंड का लेआउट है उसमें भी उस वजह से थोड़ी बहुत चेंजेस हुई हैं। तो आज सभी डिपार्टमेंट्स के साथ हम लोगों ने एक तो ये बैठक करी और उस बैठक के बाद हमने ग्राउंड का भी सर्वे किया और जो मेन पॉइंट्स थे जहाँ पे हमें इमीडिएटली काम शुरू करना है इसको लेकर या जहाँ पे हमें और विभागों के सुझाव चाहिए थे उसको लेकर आज एक बड़ी डिटेल बैठक के बाद डिटेल सर्वे भी किया है और सभी विभाग जो हैं वो अपने अपने काम में अब लग गए हैं। जो हमारी सब कमिटीज़ बननी है उनको भी हम अब नोटिफाई कर देंगे ताकि वो विभिन्न सब कमिटीज़ जो हैं वो अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से उस काम में लग जाएंगे, क्योंकि अब समय जैसा आपने बताया कि लगभग 2 महीने का समय है, तो दिस इज़ द टाइम जब हमें ये प्रिपरेशन शुरू करनी है ताकि हमारी प्लानिंग जो है वो ठीक तरीके से हो। पार्किंग को लेकर जो है इस बार हमने ये तय किया है कि कुछ शहर के आसपास जो हमारे दोनों तरफ से एक्सेस है, चाहे हम बजौरा की तरफ से आते हैं या मनाली की तरफ से आते हैं, तो दोनों तरफ से कुछ टेम्प्रेरी पार्किंग्स क्रिएट की जाएंगी। एक पार्किंग स्पेस हम पीडी के पास आइडेंटिफाई कर रहे हैं, एक पार्किंग स्पेस जो है वो सरवरी के साथ जहां MC को लैंड ट्रांसफ़र करी गई है वहां आइडेंटिफाई किया गया है। तो इन दोनों पार्किंग स्पेसेस के साथ एक तो वहाँ टेम्प्रेरी पार्किंग्स को संचालित किया जाएगा और वहाँ से जो है वो शटल सर्विस HRTC के माध्यम से इलेक्ट्रिक बसेस चलवाई जाएंगी ताकि लोग वहाँ पे गाड़ी पार्क करें और दशहरा मैदान तक वो उन बसेस के माध्यम से आ सकते हैं। बसेस की टाइमिंग इस तरह से रखेंगे कि हर 10 मिनट में या 15 मिनट में वहाँ से बसेस चलें ताकि लोगों को कोई इनकन्वीनियंस ना हो।
और आगे बढ़ते हैं, बरसात के मौसम में सबसे ज्यादा फैलने वाली बीमारी स्क्रब टाइफस से जिला सोलन में अभी तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। और अगर बात करें जिला सोलन में जनवरी से लेकर अभी तक स्क्रब टाइफस से ग्रसित 11 लोग हॉस्पिटलाइज हैं। ये जानकारी जिला स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अमित रंजन तलवार ने दी। उनका कहना है कि सबसे पहले नौनी के देवठी ग्रेटी गांव से एक महिला की मौत का मामला सामने आया था। उसके बाद अर्की के एक युवक की मौत स्क्रब टाइफस से हुई थी और कल ही सोलन की ITI के समीप रहने वाले एक और युवक की मौत का मामला सामने आ गया है। अभी तक जिला सोलन में स्क्रब टाइफस से 3 लोगों की मौत हो चुकी है और ये तीनों लोग IGMC शिमला से ही अपना इलाज करवा रहे थे। जो तीसरी डेथ स्क्रब से IGMC में हुई है डिस्ट्रिक्ट सोलन से, वो डायरेक्ट पेशेंट वहाँ गया था, उसको क्रोनिक किडनी डिजीज CKD भी डायग्नोस्ड था और मतलब कोमॉर्बिड पेशेंट था वो, और उसको ITI के पास का रहने वाला है, सोलन टाउन का रहने वाला पेशेंट है। इस तरह से हमारी टोटल ज़िले में अभी तक जनवरी से लेकर के स्क्रब से 3 डेथ्स हुई हैं, तीनों IGMC में हुई हैं और तीनों पेशेंट्स IGMC में ही डायग्नोज हुए थे। टोटल अभी तक हमारे पास डिस्ट्रिक्ट में 11 पेशेंट्स डायग्नोस्ड हैं जनवरी से अभी तक जो डायग्नोज हुए हैं, और बाकी पेशेंट्स इम्प्रूव भी किए हैं। तो स्क्रब का रहता है कि रेनी सीजन में ये इलनेस होती है और ग्रास कटिंग जो सीज़न होता है उससे कोइंसाइड करती है ये इलनेस। एक माइट होता है, शिगर करके उसको बोलते हैं, तो वो माइट के काटने से एक बैक्टीरिया है ओरेंशिया सूरसू गैम्बोशिया, ये उसका नाम है, उस बैक्टीरिया के का इन्फेक्शन है, उस बैक्टीरिया से कॉज होता है और उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस होती है डॉक्सीसाइक्लिन या टेट्रासाइक्लिन। तो हम सभी को इंस्ट्रक्शंस हमारी यही रहती है कि अर्ली इन द इलनेस हम अगर डॉक्सीसाइक्लिन स्टार्ट कर देते हैं तो इसकी जो मोर्टेलिटी के चांसेस है कम हो जाते हैं। लेकिन अभी एक जो पहले भी डेथ हुई है उसमें हार्ट फेलियर था उस पेशेंट को, अभी जो डेथ हुई है इसमें किडनी फेलियर था, क्रोनिक किडनी डिजीज का पेशेंट था ये। तो कोमॉर्बिड कंडीशंस जो हैं वो भी कंट्रीब्यूट करती हैं एक फैक्टर टुवर्ड्स डेथ, टुवर्ड्स मोर्टेलिटी ऑफ द पेशेंट। और जायका प्रोजेक्ट के तहत प्रदेश के किसानों को स्वरोजगार अपनाने के लिए प्रेरित करने के लिए काम किया जा रहा है। तो फसल विविधीकरण योजना के लिए भी जायका प्रोजेक्ट किसानों को जागरूक कर रहा है ताकि आने वाले समय में फसलों के माध्यम से मुनाफा कमाया जा सके। हमीरपुर स्थित प्रदेश जायका प्रोजेक्ट कार्यालय के माध्यम से पूरे प्रदेश में 12 जिलों के 266 गाँव में जायका प्रोजेक्ट के तहत विभिन्न गतिविधियों को अमली जामा पहनाया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश में जो जायका एग्रीकल्चर का जो प्रोजेक्ट है वो लगभग सभी 12 जिलों को कवर कर रहा है और कुछ जिलों में जो है वो ज़्यादा पोटेंशियल है तो उसमें ज़्यादा विलेजेस कवर हो रहे हैं, लेकिन कुछ जिले जैसे लाहौल स्पीति किन्नौर है तो वहाँ थोड़ा कम है। अभी तक हमारा जो टारगेट है पूरा प्रोजेक्ट का वो 296 गाँव का है, जहाँ पे हम लोग लगभग 7400 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन के ऊपर सिंचाई की सुविधाएं बनाने जा रहे हैं और 25,000 से ज़्यादा किसान परिवार जो है वो इससे लाभान्वित हो गए। तो ये तो ओवरऑल टारगेट है प्रोजेक्ट का। बट अभी हमारी जो स्थिति है आज की डेट में वो ये है कि हम लोग लगभग 266 जो विलेजेस हैं उनको ईयर मार्क कर चुके हैं कि बिल्कुल फिजिबल हैं, फिजिबिलिटी सर्वे हमारे हो चुके हैं और लगभग 245 के ऊपर जो है वो सर्वे चल रहा है। तो 245 में से हमारी लगभग 180 जो एस्टिमेट्स हैं इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के गांव के अंदर वो हमारे बन चुके हैं और उसमें से लगभग 120 जो हमारे DPRs हैं वो हमारे जो PMC है उसके द्वारा अप्रूव कर दिए गए हैं, यानी कि 120 गाँव के अंदर जो है वो काम शुरू करने लायक स्थिति हमारी हो चुकी है। और क्योंकि ये वर्क्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू हम करेंगे तो कॉन्ट्रैक्टर्स को जो है वो प्लेस करने के लिए HPE टेंडर्स के माध्यम से हम लोग जो है वो टेंडरिंग चल रही है और हमारे जो स्टेट ऑफिस है वहाँ से कोई टेंडरिंग नहीं होती है, कोई परचेजिंग नहीं होती है, बल्कि हमारे रीजनल ऑफिस है सोलन में है और मंडी में है, पालमपुर में है और हमीरपुर में एक अलग से हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल का ऑफिस है, वहाँ से जो है टेंडरिंग चल रही है और लगभग 60 वर्क्स जो है वो हमने अवार्ड कर दिए जिसमें से 20 का काम शुरू हो गया है।
ज़्यादा काम शुरू होना था, लेकिन जुलाई अगस्त में आपको पता है, बल्कि मई से ही बरसातें ऐसे चली हुई कि थोड़ा सा फील्ड में काम करना दिक्कत है। बट 60 जो काम है वो अवार्ड हो चुके हैं। बाकी लगभग हमारे 125 का टारगेट है कि सितंबर 30 तक जो है वो हम टेंडरिंग पे डाल देंगे बाकी के जो बच्चे हमारे वर्क्स। तो ओवरऑल इस साल हमारा ये है कि 125 जो काम है उन पे काम शुरू किया जाए गाँव में, और लोगों को जो सुविधा जल्दी से जल्दी सिंचाई की उपलब्ध करवा दी जाए। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज 18 जे के एच पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।